Hello, student of 9th class. As you know that very clearly, very easily, let's understand about features of democracy. This is 5 main characteristic of democracy that is given in your textbook in next pages and with different case studies. But when I collected these all the things and grouped, and here we will try to understand one by one. Okay, in previous video I have explained the elected representative, but here combinedly there are 5 main characteristic, 5 major characteristic of democracy, that is elected representatives, the first feature, and second is free and fair election, second, and civil liberties, नागरिक आज़ादी, स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका. These 5 words. Okay, let's try to understand one by one. Elected representatives. You know that democracy is the government of people. It means people elect their government, people elect their ruler, people are the source of power in democratic country. So first feature that in democracy rulers are in indirect democracy, ruler represent the citizen of the country, and people elect through universal franchise there and using by right to vote their representatives. People elect their representatives through universal franchise, that is right to vote. So that is major feature of democracy कि यहाँ पर हम अपने रूलर्स को चुनेंगे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये मेन है. अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, जिनको हमने गवर्नमेंट बनाया है, if they are not elected, it means democracy cut pit. Okay, and second is here free and fair election. You know that in our country election procedure are conducted by Election Commission of India, and this institution, this body conduct election free, बहुत स्वतंत्र एंड फेयर और साफ सुथरा, यानी पीपल इलेक्ट जो करते हैं वो उनका फेयर इलेक्शन होता है भारत में. अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अगर मान लो भारत में आप इलेक्शन वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आपका वोट वो उसमें घपलेबाजी हो जा रहा है कि आप वोट दे रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट बना ली जा रही है फर्जी तरीके से, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ भारत में अगर देखोगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो गवर्निंग पार्टीज हैं वो हारती हैं और जो रूलिंग पार्टीज हैं वो हारती भी हैं. जो लॉस जो उन्होंने किया है, जिन्होंने लास्ट टाइम लॉस्ट किया था, वो फिर रीगेन करती हैं अपनी पावर को. इट मीन्स इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर. ठीक है, एंड आवर इलेक्शन कमीशन इज टोटली डिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव. थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली आई डोंट नो. Civil liberties, नागरिक स्वतंत्रता. It means in democracy, people of the society are free to form any party, to walk anywhere in any city and do anything. They have right to speech and expression. Okay, यानी लोगों की जो स्वतंत्रता है different type की, जो natural freedom है, that is secure in democracy. This is feature of democracy. But you will not find in dictatorship these are the things. You will not find in dictatorship, because dictator is absolute power. Dictator have absolute power. All the powers here you will find the separation of power. But in dictatorship, the dictator have all the powers. The dictator can control the people. But it means in other form of government, apart from democracy, you will not find civil liberties. But in democracy ensure the people of the country civil liberties, that they can
for many parties, freedom of expression, speech, these are the things. Okay. The fourth feature or fourth characteristic of democracy is, according me, this is major. Rule of law. It means in our country, in a democratic country, in any democratic, there is rule of law. It means विधि का शासन. What is rule of law? It means भारत में कौन शासन कर रहा है? अभी आप जनरली कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी. क्या हमारे लिए कानून अलग है? क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून अलग है? क्या चीफ मिनिस्टर के लिए कानून अलग है? क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए सभी के लिए कानून अलग? नहीं. In democratic countries is governed by constitution. Constitution, it means law. It means इसे कंट्री में लॉ का शासन है, रूल ऑफ लॉ का शासन है, किसी दूसरे का शासन नहीं है. जब according to constitution, if anyone is getting any respective post, that respective post, all the posts are getting power from constitution. यानी in the eye of law everyone is equal. Everyone is equal. Rule of law मतलब हमारे यहाँ लॉ का शासन, नियम का शासन है. In the eye of law, प्राइम मिनिस्टर एंड ए ऑर्डिनरी पर्सन इज इक्वल. प्रधानमंत्री अगर किसी का मर्डर करेंगे उनको भी उतना ही सजा मिलेगा, और हम किसी का मर्डर करेंगे तो हमको भी उतना ही सजा मिलेगी. ठीक है, यानी एवरीवन इज इक्वल. हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, राष्ट्रपति का शासन नहीं है, किसी का भी शासन नहीं है, विधि का शासन है. विधि से शासन होता है, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं. तो ये मेजर और ये सोल है, आप समझ सकते हैं डेमोक्रेसी का, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज. एंड फिफ्थ इज, यू नो दैट देयर आर 3 organ ऑफ डेमोक्रेसी. You know that 3 organ of democracy. What are they? Legislature, and second, executive, and third, judiciary. Judiciary. These are 3 organs of government. And you know that there is separation of power. Judiciary, legislature experience its own function and power, and this on. Judiciary, function of judiciary is the control and solve the controversy and problems created in executive and legislature, and any problem in state and government and in among the people. And suppose legislature यानी जो गवर्नमेंट है, अगर ये कंट्रोल करती जुडिशरी को, तो ये न्यायपालिका को अगर कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, तो इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने अकॉर्डिंग ये जस्टिस दिलवा देंगे. इसका मतलब यहाँ पर एक 5 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इट मीन्स द मेजर इन अमॉन्ग मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ओके स्टूडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब बेटा इसको हम इस तरीके से एक बार रिकॉल करते हैं. ओके, सिंपली कुछ भी नहीं समझना है. आप यू नो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट व्हाट इज द फीचर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अब नाउ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सिविल लाइबिलिटीज, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. 5 जो मेजर हैं, इनके मीनिंग्स को यानी मतलब का अर्थ जो आप मतलब है इसको आप समझने का प्रयास करिए. व्हाट इज दैट कि पीपल आर इलेक्टेड, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की थ्योरी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मेन फीचर है. इलेक्शन, दैट इज इलेक्शन आर हेल्ड, दिस शुड बी फेयर एंड फ्री. फ्री इट मीन्स फ्री, पैसे वाला फ्री नहीं, फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. And fair it means साफ सुथरा, no कोई घपलाबाजी. And civil liberties in the people and citizen of the country, that is democratic country, get civil liberties, freedom to form anything, to do anything, to walk anywhere in the country, to speak anything, to think anything, to follow anything. These all the things are provided by democratic government. But in dictatorship आप हिस्ट्री में पढ़ोगे,
कि एडॉल्फ हिटलर ने सिर्फ कुछ लोगों को राइट थे, आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो, वो जैसा कहेगा वैसा करना है। आप अगर सोच रहे हो कि आपको ये बोलना है, आपको स्पीच देना है, इस धर्म को फॉलो करना है, तो यू कांट डू इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट इन डेमोक्रेसी दिस लिबर्टी, दिस राइट इट प्रोवाइडेड बाय डेमोक्रेसी। तो दिस इज मेजर फीचर। ओके, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है, हमारे यहाँ किसी का शासन नहीं है, ठीक है, रूल का शासन है। एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बेटा जुडिशरी जो है न्यायपालिका है, जो आप जानते हैं कि 3 लेवल में, एक सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स फॉर ऑल द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 3 हायरार्किकल डिवीजन इज आल्सो जुडिशरी 3 लेवल में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ये गवर्नमेंट से एकदम इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हाँ, इवन गवर्नमेंट इलेक्ट द जजेस, बट जजेस आर आफ्टर अपॉइंटमेंट, जजेस आर नॉट अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट। इट मीन दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज के हम क्लास में सिर्फ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। लास्ट डायमेंशन जो है थोड़ा सा हम ब्रॉडेन करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में पक्ष में, और डेमोक्रेसी के थोड़ा सा अगेंस्ट में भी कुछ बातें जो चर्चा की गई उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर 5 फीचर्स मेन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड if you are facing any problem you can search more information. If you want to get more information, you have many ways. You can contact me or you can search on Google. Thank you student.